This conference will now be recorded. Okay, so now this is almost the last topic in the pointers. That is the pointers to a function. Almost we have covered. We have touched every topic as far as this pointer concept is considered. And this is supposed to be the last topic in the pointer. That is the pointer to a functions. And then afterwards we will discuss some of the complex declarations in the pointers. Okay. So now see, what is a pointer to a function? See, you know that even a function is not a variable, right? You understand that function is not a variable, but what we have studied is that a pointer is always points to a variable address, right? So but function is not a variable, but in case of the C, even the function is not a variable, still you can have a pointer to a function. Is it so, right? Don't you think, meaning this pointer, what is the pointer? Pointer is a special type of variable that is pointing to some another variable address. Yes or no? Yes, sir. Yes, Garima. Yes, so, but what we are saying here, we are saying that we are now going to have a pointer which is pointing to a function. But your question should be, sir, function is not a variable. Then how can we point it? Yes, we can point it. C has the facility to point to a function as well, although the function is not a variable. Okay. So you can make a pointer to a function. So that is what we are going to study today. That is, we can make a pointer to a function and can call a function using that particular pointer. Normally, how we are going to call a function? For example, we have some function sum and we have two values 3 and 10. This is how we are going to call a particular function. But even we can call this particular function using the pointers. If we are going to make a pointer which is pointing to this particular function, then using that pointer I can call my function. But please take it that we are not going to use this pointer to function mostly in the languages, programming languages, because this is a little bit complex. So but anyways, we have the concept, that's why we are studying it, right? Okay, so that's what I have written is that it is not widely used, not commonly it is not being used, that is pointer to a function, because it's a little bit complex declaration. So it's because why it is not we are going to use it, because it makes a program difficult to read. This is the only reason. Otherwise, if you can understand it, yeah, we can make the programs. But very less number of programs I came across where we have used this pointer to a functions and such type of complex declarations. So our suggestion is that, yeah, you take the concept, but in the programming language you do not use, otherwise you will be confused. Okay. Now, so this is, let's take the example. So this is a normal declaration. This is how we are going to declare a particular function, that is of it is going to return an integer, and this is the name of the function, and it is going to take the two arguments which is of integer types, right? So this is a normal declaration. But now in case of the pointer to a function, how we are going to declare it? See this is int, then star, then this is fp, then this is int and int. Now this is how we are going to declare it. Okay, so how we are going to read it? How we are going to read it? See this, we have two operators here. What are those? This is star and one is the bracket. Okay, so according to the precedence order, which is having the highest precedence in the star and the this particular bracket? Yes, beta. Yes, the bracket, Jan. sir. Bracket, obviously. Bracket, sir. So please, if you will understand this concept, you will be able to understand the whole concept of the pointers. Whatever the complex type of declaration will be given to you, if you will understand this precedence ordering and how we are going to read it, then whatever the type of complex declaration I will give to you, you will know frequently, you are going to easily read it out. So how we are going to read it first, that try to understand that. So first, always try to find the precedence ordering if we have more than two operators. Here we have operator star and here we have the operator at the bracket, right? So we know that the bracket is having the higher precedence as compared to the star operator, right? So that's how we are going to read it. It means that we are going to read this first. We are going to read this first, and then we are going to read this one, and then finally we are going to read this one. Okay. Now see this. Thus, how we are going to read? fp, that is the fp is a function. Why beta? Why we are going to say that fp is a function?
why we are reading like this? F is a function that returns a pointer, to an integer. This is how we are going to read. Why we are reading like this? Anybody can? सर Can anybody पहले tell me क्योंकि what- ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो वो पहले फंक्शन बन जाएगा सर वो. Very good. So what he is saying, see sir, because we have just told that bracket precedence is higher, and we know that whenever we have some variable type of name and then after that we have some bracket, then we consider that thing as a function only. So what we are saying, sir, we have something like this and then we have put the bracket. So it means that now this is not a variable, this becomes a function. So how we are going to read it? Say fp is a function. So how we are going to read, sir? Now fp is a function. Okay, now this is finished. Fp is a function that returns. What it is returning? It is returning a pointer. This is the second number line. It is returning a pointer to, returning a pointer meaning it is returning some address. Okay, it is returning some pointer to an integer. That is the third line. So it means that whatever the function fp is going to return, it is an address which is pointing to some integer. Yes or no? Clear, Yes. beta? Yes. Yes, Okay. sir. Yes, Now, sir. now, Yes, sir. now coming to this one. So thus, but see, this is a little bit confused, right? We are a little bit confused here. So what we will do, in order to avoid this confusion, you simply write it. This is bracket star fp and then bracket and int, right? Like this is how we are going to write it. Okay. Now we will say, sir, which is having the highest precedence now. Now among this we have this bracket also. How we are going to read it now? Yes, both bracket is having the same precedence. If this is the rule, then both the bracket is having the same precedence. How we are going to read it now? Yes. Right, yes. सर Left to associativity लगाएंगे सर. Associativity That's लगाएंगे. good. That's very good. Yeah, great. So now you are saying, sir, see, it's very simple because both the bracket is having the same precedence. Now what we will do? Obviously, we are going to see the associativity. Now the bracket is left to right associative. Okay. So it means that now we are going to move from here to here. Now which particular bracket will come first? This particular bracket will come first. And inside this bracket, what we have? This is star fp. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. can anybody now can read it? How I'm going to read it now? If f is a function now, f is a pointer. Sir, pointer to a function. Pointer Very to a good. function. Okay, so you are saying, sir, because I'm reading this one first, so fp become a pointer now. So fp is a pointer to a what? I'm going to read it second. fp is a pointer to what? This bracket. And what this bracket is? This is nothing more than a function. Yes or no? Indicating function. Yes, sir. Yes. So fp is a pointer to a function returning what? Sir, integer value, sir. Integer. Okay, let it elaborate more. fp is a pointer to a function which takes two arguments of type integer and it will return what? What is the third number line? Integer. Integer, sir. Now can you read any complex declaration? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. So now this is how we have made a pointer to a function. This is how we have made a pointer to a function. इस तरह से हमने एक pointer बना दिया function को जो correspond कर रहा है, function को जो point कर रहा है. Okay. So now see this one. Here today we also discuss about the generic pointers as well. Okay, so this is how we have declared a pointer to a function. This is one. Please, जहां पे मैं लिख रहा हूं, जहां पे मैं write कर रहा हूं, आपको वहीं पे focus करना है. जो material इधर लिखा हुआ है, please do not focus on that. Otherwise you will be confused. एडवांस में रीड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. जहां जहां बोल रहा हूं वहां रीड करते जाओ इस चीज को. ठीक है. सो दिस इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन. ओके फाइन, आगे बढ़े. Yes, अरे एक yes, बार sir. रिपीट कर दो, मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी.
यस 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 व्हाट? सर ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार रिपीट कर दो सर। बेटा हमने केवल ये डिस्कस किया है कि हमें एक पॉइंटर टू ए फंक्शन बनाना है, या छोड़ो पॉइंटर टू ए फंक्शन भी नहीं बना रहा, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ इस टाइम। हम क्या कर रहे हैं, हम एक रीडिंग करना सीख रहे हैं कि कभी भी मुझे पॉइंटर्स के केस में कोई डिक्लेरेशन दी होगी तो मुझको रीड कैसे करना है, मुझे उसको रीड करने का तरीका मेरा क्या है। हमें हमेशा ये देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स है, उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस निकालनी है। जिस ऑपरेटर की सबसे पहले प्रेसिडेंस होगी हम सबसे पहले उसको रीड करेंगे। अगर किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम होगी तो हम उसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी तो हम लेफ्ट से राइट उसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं अभी। पॉइंटर टू ए फंक्शन, मैं नहीं बोल रहा कि पॉइंटर टू ए फंक्शन बनाना है, हम एक जस्ट रीडिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या देखा है, इस वाले एग्जांपल में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक ब्रैकेट इधर है और एक ब्रैकेट हमारा ये वाला है, तो दोनों ही ब्रैकेट्स की हमारी प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है। तो हम क्या देखेंगे अब, बताओ क्या देखेंगे? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। और ब्रैकेट्स के केस में जो है वो एसोसिएटिविटी कहाँ से होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो हम लेफ्ट से राइट चलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हमारा कौन सा आया, ब्रैकेट स्टार एफपी। यस यस सर। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर स्टार एफपी दिख रहा है। और स्टार एफपी को रीड करना जानते हो कैसे करते हैं हम, क्या बोलते हैं हम इसको, एफपी से पॉइंटर, यही तो बोलते हैं। यस सर। So हमने बोला कि सर f is a pointer. Okay, so line number 1 is finished. So now come to the line number 2. So what is the line number 2? So line number 2 is containing this particular bracket. Yes or no? यस सर। So what we are saying, sir, see f is a pointer to what? This bracket. And what this bracket is? It is representing a function. Why it is representing a function? Because we know, sir, because if before this particular bracket, if we have some type of variable and then this bracket, then it becomes a function. That's simple. Okay. Okay sir. So how we are going to read, sir, fp is a pointer to a function. Okay, now function, what it is taking, which is taking two integer parameters. Okay, and what is it returning? It is returning, sir, integer. Yes or no? आप समझ में आ गया रीडिंग करनी? यस सर। तो जैसे ही आपने इसको रीड किया, आपने तो एक तरह से ये बोल दिया, सर fp is a pointer to a function. Okay, you have created a pointer to a function. अभी अभी आपने बना दिया पॉइंटर टू ए फंक्शन, वही हम पढ़ रहे हैं। यस और नो? यस सर। ओके ओके, नो सो नाउ आई थिंक इट्स प्रीटी simple and it's easy. Now see example. So here what we have done, please, what we have done here, tell me. It is a pointer to a function, yes or no? Yes sir. Okay, now what we have done here, sum, this particular sum is a normal function that we have declared. Where we have declared a normal function? Here we have declared this normal function. Okay, some normal function we have declared. So how we are now see fp becomes a pointer now, so we can directly write fp is equals to sum. So it means that now fp is pointing to this particular sum. Okay, yes or no? सर मतलब पॉइंटर टू अ फंक्शन एक फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। हाँ, ये मानो एक हमारा जो फंक्शन, जैसे बेटा हमने आप टावर ऑफ इनोई को हमने वहां पे, सुनो मेरी बात, हमने टावर ऑफ इनोई को याद करो, वहां पे हमने जो है फंक्शंस बनाना सीखे थे। हमने ये कहा था जब भी कोई फंक्शन होगा तो हम क्या करते हैं, स्टैक मेमोरी एरिया के अंदर, सर जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक मेमोरी एरिया बन जाता है। यस और नो? यस सर। तो उस जो स्टैक मेमोरी एरिया बना उसका कोई एड्रेस तो होगा। यस और नो? स्टैक और उसको बोल रहे तो हम तो वही कर रहे हैं हम। पॉइंटर किसको एड्रेस करता है बेटा, किसको एड्रेस करता है सर? पॉइंटर तो सर एड्रेसेस को डिनोट करता है। तो हमने वही तो किया है, जैसे हमने एरे के केस में किया था। एरे का नाम लिखना इज सेम एज दैट पॉइंटिंग टू इट्स एड्रेस। सम का नाम लिखना इज एज गुड एज पॉइंटिंग टू इट्स एड्रेस। ओके गरिमा, यस और नो? ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? बताओ। यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीख ली है।
फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक पॉइंटर बनाना सीख लिया पॉइंटर फंक्शन पे, और जब मेरा पॉइंटर बन गया तो पॉइंट कहाँ करेगा? अरे भाई फंक्शन के लिए बनाया है तो फंक्शन पे ही पॉइंट करेगा, और फंक्शन का डायरेक्टली अगर नाम लिख दोगे तो उसको एड्रेस, उसके पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, मीनिंग उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और किसी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है डायरेक्टली, उसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही वो एड्रेस कर रहे हैं हम, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। कॉलिंग मीनिंग उसको पॉइंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, राइट। नाउ हियर अब बात करते हैं कि सर नॉर्मल कॉलिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल कॉलिंग तो हम ऐसे करते हैं, यस और नो? यस सर। तो सर Yes, sir. पॉइंटर के पॉइंट अभी आपने बताया कि सर पॉइंटर के थ्रू भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बोला है कि पॉइंटर किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली हम उस फंक्शन को कॉल कर ही सकते हैं उस पॉइंटर के थ्रू। तो कैसे करेंगे? देखो ये हमारा पॉइंटर स्टार एफपी को तो पॉइंटर बोलते हो कि एफपी को इसी तरह लिखते हो ना, स्टार एफपी इज अ पॉइंटर नाउ। Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, sir, FP is a pointer which is pointing to a function. This is the function. What it is taking, sir? It is taking the 2, 10, and 20 as actual arguments, and it is returning something that will be stored in the S. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको जो है पॉइंटर टू अ फंक्शन बनाना आ गया है। अब आपको ये आ गया है कि जो है हम किसी फंक्शन को जो है पॉइंटर के थ्रू किस तरह से कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अ जेनरिक पॉइंटर। अब यहाँ पे जेनरिक पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम वॉइड स्टार भी बोलते हैं। अब हमारी बेटर अप्रोच इज ऑलवेज मेक अ जेनरिक पॉइंटर एंड ऑलवेज टाइप कास्ट अ जेनरिक पॉइंटर बिफोर पॉइंटिंग इट टू एन एरे। पहले जेनरिक पॉइंटर समझ लेते हैं कि क्या है। पहले इतनी स्टोरी समझ में आ गई तो पहले जेनरिक पॉइंटर समझते हैं क्या है। ओके देखो, चलो उससे पहले 2-3 रीडिंग करके दिखाओ मुझे। यहाँ पे इसको कैसे रीड करोगे? जैसे अभी बताया उसी रोल से रीड करके दिखाओ इसको। विदाउट सीइंग द आंसर रीड इट। गरिमा, कैन यू रीड इट? It is an Yes, array Garima, of pointers of size 5. No, Naman, keep quiet. Garima, can you read out? I think Garima is not in the class. Okay, fine. And then, okay, Naman, can you read out? Yes. Naman Agrawal. Sir, it is an array of pointers of size 5. Excuse me, sir. इसको रीड आउट दोबारा से करो, अच्छे से रीड करो इसको, ऐसे नहीं। नो। यस मोहन। Sir, integer array of pointers of size 5. थोड़ा सा रिफाइन करो इसको। Sir, P is an array of pointers of size 5. Array of pointer to integer of size 5. Sir, P is an array of pointers of size 5 and P is pointing towards the first member of the array. ओके इस तरह से इतनी गंदी रीडिंग करोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। अगर मैं आपको अभी कॉम्प्लेक्स, सुनो रुको, अभी मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन और देता हूँ, रुको अभी। अगर ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा, रुको अभी। मैं बोल रहा हूँ जो रूल अभी बताया उस रूल से इसको फॉलो करते जाओ। इसको रीड करना जरा, ये जो लिखा हुआ है लाइन नंबर 7, दिस वन। Sir, character rule array of बताया, size 5. वेरी बैड। ओके, नाउ कमिंग टू द रूल्स। ओके, सी दिस। कैसे रीड करना है पहले सुनो, फोकस मत करो आंसर पे, पहले सुनो कैसे करना है। हमने क्या बोला कि सर ठीक है, यहाँ पे जब भी इस तरह का 2 ऑपरेटर्स मेरे पास आते हैं तो मुझे उसकी प्रेसिडेंस देखनी है। ठीक है, हमने यहाँ से क्या निकाला, दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैविंग द हायर प्रेसिडेंस देन दिस पर्टिकुलर स्टार। यस और नो, यस और नो बोलते रहो बस। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. आपने स्प्लिट कर दिया इसको। सर दिस इज स्टार, दिस इज पी एंड दिस इज 5। ओके, एंड सर दिस इज समथिंग इंट। तो सर हम किसकी रीडिंग पहले करेंगे? सर इसकी पहले रीडिंग आ गई है मेरी,
इस वाले के साथ, मीनिंग ये P अब किसके साथ एसोसिएट हो गया है, यहाँ पे नंबर 1. नाउ दिस इज नंबर 2 and this is number 3. Okay, so forget about 2 and 3. If I simply say P of 5, what is this? P is an array of 5. P is an array, yes or no? Sir, P is an array. Yes, sir. Okay, let's draw the array. Let's draw the array. Sir, P is an array. So how many cells it will contain? 5. 1, 2, 5. 3, 4 and 5. Okay. So now, but sir, this 5 cells is actually the pointers. Okay, coming to the second number line, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is the pointers. Let's draw the pointers. Pointers are looking like this. Okay, so this is the pointers. So, sir, P is an array of 5 pointers. Okay, sir, they are pointing to something. What they are pointing to? Integers. So they are pointing to some integer. Yes or no? Yes, sir. समझ में आ गई रीडिंग हर्ष? Yes, sir. नमन? Yes, sir. गरिमा? Yes, sir. सर एक बार यस repeat गरिमा? सर उसका देखो मतलब बेटा। नहीं जाना, आपने चैट बॉक्स में लिखा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। दोबारा से सुनो इस रूल को जो मैं बोल रहा हूं, दोबारा से सुनो। कितनी भी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, आप इजीली उसको रीड आउट कर दोगे। और पॉइंटर्स में अदरवाइज आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे कि करना क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी मेरे ऑपरेटर्स है, हमें उन ऑपरेटर्स को सर्च आउट कर लेना है। इसमें कितने ऑपरेटर्स हैं सर? एक तो स्टार दिख रहा है, एक हमारा ब्रैकेट, इस तरह से ये ब्रैकेट दिख रहा है मेरा। यस, Yes, दो sir. ऑपरेटर्स हैं सर। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस निकालते हैं सर। प्रेसिडेंस के हिसाब से तो ये वाला ज्यादा है। ओके, इसका मीनिंग इसको पहले हम रीड करना है। इसका नंबर प्रायोरिटी नंबर 1 बन गया है इसका। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये P के साथ एसोसिएटेड है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। इसको पहले रीड करेंगे हम। तो जैसे मैंने इसको रीडिंग करनी स्टार्ट करी, कैसे रीड करूं सर? P इज व्हाट? ये ब्रैकेट किसके लिए होता है? ये एरे के लिए, ये वाला ब्रैकेट। Yes, sir. Yes, sir. तो सर P इज एन एरे। चलो भाई एरे बना दो पहले तो। लो बना दिया एरे। सर कितने सेल्स बनाओ एरे में? कितने वैल्यूज इसके अंदर? 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। सर P इज एन एरे। ओके, लेकिन किस टाइप का एरे? P इज एन एरे ऑफ, अब देखो ये वाला ब्रैकेट आपने फिनिश कर दिया। इसको एक सेकंड में इसको ऐसे कर देता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं साथ साथ ना। सर P इज एन एरे, ये डिलीट करो, यहां से डिलीट करो। ठीक है, एरे बना दिया। सर 5 भी हमने ड्रॉ कर दिया, डिलीट कर दो। कुछ बचा क्या इसके अंदर? अब बताओ। No, sir. No, sir. तो First आप कहां one. जाओगे सर? इस पे आ जाओ, सेकंड पे। सर P इज एन एरे। सर एरे, लेकिन सर ये एरे, ये सर पॉइंटर टाइप का है। सर ये पॉइंटर टाइप का है, मीनिंग सेल्स के अंदर क्या है? पॉइंटर्स है क्या? हाँ, पॉइंटर्स है। तो पॉइंटर्स तो एड्रेस होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एड्रेस बना दिया आपने। सर इसके अंदर कोई एड्रेसेस आएंगे। ओके, ठीक है, ये फिनिश हो गया। फिनिश कर दो इसको। अब क्या आएगा? थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे क्या है? ये सर कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? ये सर किसी इंटीजर वैल्यूज पे पॉइंट कर रहे हैं। कोई यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज है, उस पे कोई भी इंटीजर वैल्यूज हो सकती है सर। यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. तो कैसे रीड करना है? P is an array of 5 pointers to an integer. Okay. Yes, sir. Yes, Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? Once. समझ आ गया सर। ओके, नाउ सेकंड नंबर एग्जांपल रीड करो। चलो, आंसर नहीं देखना है, खुद से रीड करना है। मैं आंसर छिपा देता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके, एक सेकंड, बोलो। चलो, यस अनिमे, सिद्धार्थ, and who else? P is a pointer to an integer array. the P is a pointer. Sir, P is a pointer of P is a array. pointer to an integer array of size 5. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. Very good. So some of you are saying, sir, see, we have identified that this particular one is operator is this one operator is this one. Sir, we have seen this precedence ordering in the chart, precedence ordering chart. Okay, but their ordering is same, their precedence order is same. What we will see?
then we will see the left to right associativity. Okay, so it means that we have to go from here to here. So now it means that first we are going to solve this number 1, then we are going to solve this number 2, and this becomes the 3. So first, what is this? Sir, if I'm going to talk about number 1, it is nothing more than a pointer. It means that P is a pointer now. Okay, let me draw a pointer. So this is a pointer. It is pointing to something. Okay, now, so we are going to finish it. Then it is pointing to what? It is pointing to this particular square type of bracket. So this square type of bracket, I know that this is nothing more than an array. So this is an array. How many cells it's containing? It is containing the 5 cells, 1, 2, 3, 4, and 5 cells. So P is a pointer which is pointing to an array of 5 cells, which is of type what? What it is holding? It is holding character or some double type? Integer value. Integer. Sir, it is holding, because now we are done with this. So we have the line number 3. So it is holding an integer value. That's it. Now can you read any complex relation? Yes or no? सर इसमें जो एरे हमारी बनी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, yes, once. हाँ सर, जो ये एरे हम बनी है जो 5 साइज की हमारी, तो इसके लिए अभी हमारे पास तो निमोनिक होना है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास क्या है? तो निमोनिक होना है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम जब एरे बनाते हैं तो निमोनिक देते हैं उसे। नहीं, अभी कोई मेनोमिक नहीं है। अभी हमने केवल डिक्लेयर किया है। हमने एक ये बताया है कि हमने, देखो, जो चीज डिक्लेरेशन के अंदर हो ना, हम केवल उसकी बात करेंगे। हमें डिक्लेरेशन में केवल एक वेरिएबल, स्पेशल टाइप का वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे केवल पी के बारे में पता है। मुझे पी की कहानी ये पता है कि सर पी कोई पॉइंटर है किसी एरे को, जो है पॉइंट कर रहा होगा, करेगा, हम उसको पॉइंट करा सकते हैं। कल को आप एक एरे बनाओगे और पी को उसको एरे कर दो 5 वाले पे। ओके सर, लेकिन उसे करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना एरे कुछ नाम, तभी तो हम उसमें डाल सकते हैं। हाँ, अभी नाम केवल हमें पी के बारे में पता, हमें एरे की इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। अभी तो हमने ये अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए जान लिया कि पी एक ऐसा पॉइंटर है जो मेरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी एरे को, जो एरे 5 सेल कंटेन करता हो और जो एरे इंटीजर वैल्यूज लेता हो, उसको हम डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं पी से। पी इज इक्वल टू एरे लिख सकते हैं। यस और नो? ओके सर। तो कल को आप क्या करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर? आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक एरे बनाना। एक एरे का नाम किसने क्वेश्चन पूछा, ये बताओ सर? वंश। नाम बताओ। वंश ने। तो आपने बोला सर मेरा नाम जो है, मैं वंश से जो है एक एरे बनाऊंगा 5 का। ठीक है, एरे बनाना आता है ना, 5 एलिमेंट डाल लोगे इसके अंदर। यस सर। फिर आप ये लिख देना वंश डायरेक्टली। इससे मतलब समझ जाओगे क्या है अब ये। यस सर, ये पॉइंट कर रहा है हमारी एरे तो जिसका नाम वंश है। अदरवाइज आप डायरेक्टली बिना डिक्लेरेशन, बिना ये लाइन लिखे अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करोगे तो कंपाइलर एरर क्या देगा? अरे भाई ये तो बताओ ये पी क्या चीज है। वंश के बारे में तो आपने बता दिया, पी क्या चीज है हमें तो पता ही नहीं। तो पी के बारे में बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा पी एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी एक एरे को जो 5 सेल कंटेन करता हो और जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज हो, एक ऐसी चीज है हमारी पी। ओके ओके सर, तो मतलब जो आपने ये लाइन लिखी सेकंड में, ये बस रीड करने के लिए अच्छा, लेकिन प्रोग्राम वाइज अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। कौन सी वाली बेटा? इंट ब्रैकेट में स्टार पी और फिर अनदर स्क्वायर ब्रैकेट में 5। नहीं, ये किसने बोला अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती? ये मैं आपको रीडिंग करने का तरीका सिखा रहा हूँ पॉइंटर्स का। जो अच्छी चीज नहीं होती, अच्छी चीज मीनिंग जो हम यूजुअली यूज नहीं करते, वो होती है पॉइंटर्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन कर देते हैं हम। उनके एग्जांपल्स अभी देखेंगे हम नीचे ना, कि किस किस तरह की बहुत कॉम्प्लेक्स कभी भी पॉइंटर्स को मत बनाओ। जितना कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, ठीक है, देखो सॉल्यूशन पे हमें पहुंचना है, हमें चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। पहले लोग क्या करते थे, पॉइंटर्स का जब इंट्रोड्यूस हुआ सी के अंदर, तो जितना पॉइंटर्स को इतना कंफ्यूज कर दिया कि डायरेक्ट हमें आंसर तो 2 ही चाहिए था, और वो 2 कैसे लेके आ रहे, इधर से घूम के उधर से घूम के उस पे एक बार पॉइंटर लगा के फिर कहीं पे 2 लेके आ रहे हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन मत करो कि आप खुद भी कंफ्यूज रहो, उसको रीड करने वाला भी कंफ्यूज रहे। ठीक है, हमें आंसर पे पहुंचना, तो क्यों ना हम कैसे सिंपल तरीका बनाए कि हमारा कोई, देखो कोडिंग अगर कभी भी करनी है तो सिंपली राइट किया करो कोडिंग, जितना सिंपल बन सके वो। तो ये बोलने का मतलब है, ये तो नॉर्मली करते ही है यार पॉइंटर्स में। ये तो सिंपल है, इंट स्टार पी। ये तो मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिया था कि इसको रीडिंग करके दिखाओ।
ओके आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ओके 1 मोमेंट। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। भाई हमने म्यूट कर दिया था इसलिए नहीं आ रही है। ओके ओके दोबारा समझो। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, जेनरिक पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेनरिक पॉइंटर्स का क्या चीज है, इसको हम वॉइड स्टार पॉइंटर भी बोलते हैं। इसकी हमें जरूरत कहां पड़ती है, अभी तक हम नॉर्मल पॉइंटर्स बनाते आ रहे थे। हम बोल रहे थे भाई एक जो है इंटीजर टाइप का जो पॉइंटर बना दो, मीनिंग एक पॉइंटर बना दो जो इंटीजर वेरिएबल्स इंटीजर वैल्यूज को पॉइंट करे, यही तो बोल रहे थे अभी तक। यस और नो बोलते जागरो भाई, ताकि मुझे कंफर्म होता रहे समझ में आ यस रहा नहीं सर, आ यस रहा। सर। यस सर, तो यस अब सर। हम क्या बोल रहे हैं कि यार आप इतनी मेहनत ना करो। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि जो है एक ऐसा पॉइंटर बना दो जो एक बड़ा जनरल जेनरिक हो, मतलब जनरलाइजेशन, जैसे एग्जांपल्स की किसी इक्वेशन के जनरलाइजेशन इक्वेशन निकालते हैं ना, जनरलाइज्ड इक्वेशन, उसी तरह से एक जनरलाइज्ड पॉइंटर बना दो जिसको हम जब चाहे किसी भी वैल्यू पे उसके डेटा टाइप के हिसाब से जो है पॉइंट कर सके। उस तरह के पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, जेनरिक पॉइंटर। यस और नो? यस सर। यस सर। कैसे बनाएंगे सर? बनाने का तरीका बड़ा सही है, वॉइड स्टार जीपी लिख दो, ठीक है। ये सर हमने जेनरिक पॉइंटर बना दिया। तो सर हुआ क्या इससे, सर हमने जीपी इक्वल्स टू, अब मेरा पॉइंटर क्या होता है सर, पॉइंटर तो एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है, एड्रेस करा दिया होल्ड। सर पॉइंटर तो एड्रेस होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करा दिया। लेकिन जब आप इसको इसकी वैल्यू देखना चाहोगे तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली आप क्या करते बताओ, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना नॉर्मली, वैल्यू देखनी है। यस सर। यस सर। लेकिन बेटा क्योंकि आपने पॉइंटर एक जेनरिक टाइप का बनाया है, तो जिस टाइप की वैल्यू, जिस टाइप को आपने पॉइंट कराना है, उसमें आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू देखनी है, एक्स की। एक्स किस टाइप का है, इन टाइप का। इंटीजर। तो यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इंट स्टार में। यहाँ पे आपको सी एच को पॉइंट कर रहा है, किसकी वैल्यू देखनी है, सी एच वाले की। तो किस टाइप का है वो, टेर स्टार। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। इसको बोलते हैं हम जेनरिक पॉइंटर। तो सजेशन मेरी ये भी है कि आप अपने प्रोग्रामिंग कोड के अंदर पॉइंटर्स के साथ अगर प्ले कर रहे हो तो आप जेनरिक पॉइंटर बना के चला करो। क्यों बार बार अगर पॉइंटर्स बनाते चलोगे? अगर इसी प्रोग्राम को बिना जेनरिक पॉइंटर के करते तो क्या करते, फिर अलग अलग पॉइंटर्स बनाते, बताओ। यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर इसे जब असाइन कर रहे हैं तब नहीं करना होता टाइप कास्टिंग, मतलब नहीं सिर्फ नहीं जब प्रिंट कर रहे हैं तभी करना है। प्रिंट, अब हमें वैल्यू चाहिए ना वहां पे। अब देखो दो बातें कह दी हमने यहाँ पे। सर ठीक है, जीपी तो हमारा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फाइन है, एड्रेस एक्स को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जब उसमें से वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई यहाँ तो जीपी अपने आप में वॉइड स्टार टाइप का है, और आप किसको पॉइंट करवा रहे हो, उसको इंट स्टार को, इंटीजर टाइप वैल्यू को। तो टाइप मिसमैच हो गई। जैसे ही मिसमैच हो तो टाइप कास्ट कर दो, बस सिंपल सा ये रखना है।
ओके सर, यस सर। तो टाइप कास्ट हम पहले नहीं करेंगे असाइन करने से? बेटा ये दिस इज फाइन, ये बिल्कुल चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। पहले डेटा लॉस नहीं होगा क्या सर? डेटा लॉस नहीं होता पॉइंटर्स के अंदर। पॉइंटर्स जो void है होगा अपना क्या? चुप करो, पॉइंटर्स केवल एड्रेस होल्ड करता है, डेटा लॉस कहाँ होएगा उसके अंदर? हम उसके साथ थोड़ी ना प्ले कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर। पॉइंटर्स में डेटा लॉस किसने क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ पे है? सर मनन मनन, डेटा लॉस कैसे हो जाएगा मनन? सर कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। हाँ ठीक है, अब बैक टू एग्जांपल्स आ जाओ। अब हम कहाँ पे छोड़ा था हमने? हम पढ़ रहे थे सर पॉइंटर टू अ फंक्शन, हमने यहाँ पे बात कह के छोड़ दी थी सर, जेनरिक पॉइंटर के बारे में जान लिया क्या होते हैं। अब एक बेटर अप्रोच आप लोगों के लिए क्या है, सजेशन है, करनी चाहिए हमेशा ये। नहीं भी करोगे तो इतना भी करोगे तो चल जाएगा काम, लेकिन ये है कंसेप्ट वाइज जो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता करोगे तो कैसा इशू नहीं है। So a better approach is to always make a generic pointer and always typecast a generic pointer before pointing it to any function. जब भी मैं किसी pointer to a function बना रहा हूं तो मैं pointer किस तरह का बनाऊं? एक generic pointer बनाऊं। जेनरिक पॉइंटर कैसे बनाते हैं सर? वॉइड टाइप का होता है, ठीक है सर। ये हमारा जो है स्टार जीपी तो लिखते ही लिखते हैं, ओके सर। ये मैं फंक्शन पे पॉइंट कर रहा हूं तो इसके अंदर भी वॉइड स्टार लिखूंगा मैं। बात समझ में आ गई? सर ये ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं समझ आया, ये वॉइड स्टार क्यों किया? हाँ ये इसलिए किया, अब मैं बोल रहा हूँ यार एक सेकंड, तो मुझे नाम पता नहीं चलते कौन किसने क्या क्वेश्चन पूछ दिया, किसने पूछा क्वेश्चन? सर हर्ष। हर्ष। हर्ष, हम जैसे हमने जेनरिक पॉइंटर्स वेरिएबल के केस में पढ़ा, अब मैं पॉइंटर टू अ फंक्शन के केस में भी जो है जेनरिक पॉइंटर टू अ फंक्शन बना रहा हूँ। इसका क्या मतलब है सर? एक ऐसा पॉइंटर बना दो जो किसी भी फंक्शन पे पॉइंट कर जाए। अभी तो आपने कहा था कि सर इंटीजर टाइप वाले पे पॉइंट करेगा केवल, जिसमें आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का हो। ऊपर एग्जांपल देखो, यस और नो, कहाँ पे यस गया? सर। एक सेकंड दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। अभी हमने जो बनाया था, अभी तो हमने सर ये कहा था कि सर इसके अंदर ना इंटीजर होना चाहिए तभी हम पॉइंट कर पाऊंगा, यस और नो? यस सर। अब मैं कह रहा हूं मेरे प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन और है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेता है, तो क्या अब इससे काम चल जाएगा क्या? नो सर। तो क्या करना पड़ेगा सर? एक ऐसा जनरल बिहेवियर कर लो ना, उसका वॉइड लिख लो, और जब मुझे जिस टाइप पे भी पॉइंट करना हो मैं टाइप कास्ट कर दूं उसकी। यस सर। ओके हाँ, तो यस सर। मेरे प्रोग्राम के अंदर जैसे वेरिएबल के केस में बहुत सारे मेरे पास वेरिएबल्स हो सकते थे। अभी हमने एग्जांपल देखा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल था, वो हमने एक जेनरिक पॉइंटर उसके लिए बना दिया था। इसी तरह से जो है हम अपने पॉइंटर टू अ फंक्शन के केस में क्या कर सकते हैं, हम एक जेनरिक पॉइंटर टू अ फंक्शन बना सकते हैं। और जेनरिक पॉइंटर टू अ फंक्शन कैसे बनाएंगे? उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी और उसके इंटीजर वैल्यूज क्या होगी उसके अंदर, फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स लेगा वो भी वॉइड स्टार के टाइप की होगी। जब भी मैं उस पर्टिकुलर जेनरिक पॉइंटर टू अ फंक्शन किसी भी फंक्शन पे पॉइंट कराऊंगा अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, तो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर जेनरिक पॉइंटर को अलग अलग पॉइंटर टू अ फंक्शन पर पॉइंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसी हिसाब से मैं उसकी टाइप कास्टिंग कर लूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है बेटा, इसमें क्या है जो आपने जब पॉइंट करना है एक्सक्यूज ना, मी सर। हाँ बताओ। सर एक प्रॉब्लम ये आ रही, ये प्रॉब्लम समझ नहीं आई कि जैसे सर लेफ्ट में एक बार थोड़ा सा लेफ्ट में तक कीजिए था, ये जो ऊपर फंक्शन बना हुआ है इंट स्टार ft ब्रैकेट में, यस सर दिस हाँ वन। हाँ सर तो इसमें मुझे समझ नहीं आया कि हमें ये पता है कि हमने पॉइंटर बनाया जो फंक्शन तो पॉइंट कर रहा है, जिसपे हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इंटीजर है, हाँ लेकिन वो फंक्शन है कौन सा? हमारे में तो बहुत सारे फंक्शन होंगे ना जिनके बहुत मतलब जिनके आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर होंगे, हाँ हाँ, तो बेटा मैं वही तो बोल रहा तो हूँ इसे कैसे पता चलेगा? ये ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे बताई ना, ये देखो एक सेकंड इसको राइट असाइन करो। ये चीज हमने यहाँ पे कह दी, यहाँ पे ये जिसको यस सर। पॉइंट एफ कर पी रहा है इक्वल टू सम। यहाँ पे हमने पॉइंट करवाया, ये इसको पॉइंट कर रहा है सर ये। ओके सर। ओके यस सर।
Yes, sir. Okay. So now see this example बेटा, ये एग्जाम्पल करो जरा एक बारी। ये एग्जाम्पल क्लियर विजिबल है सबको? देखो जरा, Yes, sir. देखो कहाँ से रीड करेंगे, कैसे किया है। पॉइंट नंबर 1A पे क्लियर है, क्या बनाया है, एक हाई फंक्शन बनाया है जो क्या लेगा सर, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेगा। ओके, रिटर्न क्या करेगा, वॉइड करेगा। Void. मेन पे आ Void. जाओ, यहाँ पे क्या बनाया है जल्दी बताओ। जो हमने Pointer रूल to a बताया function. पॉइंटर टू जो हमने रूल बताए हैं उसको पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर बनाया है, टू ए फंक्शन बनाया है। वो फंक्शन की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसमें क्या आना चाहिए, इंटीजर Integer वैल्यूज आनी चाहिए। वो रिटर्न क्या करेगा, तो वॉइड ही करेगा void. रिटर्न। ठीक है, बी नंबर लाइन समझ में आ गई डिक्लेरेशन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सी पे आ जाओ, फंक्शन पॉइंटर जब आपने बनाए चुके हैं तो किसको पॉइंट कर दो, उस फंक्शन को। हाई फंक्शन, ये हाई फंक्शन ठीक है, पॉइंट हुआ है, सही पॉइंट हुआ है, यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब आपने जब इसको पॉइंट कर दिया है, मीनिंग एक फंक्शन पॉइंटर बना दिया है इस तरह से जो किसी पर्टिकुलर हाई फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो आप उसके अंदर क्या आर्गुमेंट भेज सकते हो, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। सर Yes, sir. Yes. Sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर अगर यहाँ हमारा हाई फंक्शन इंटीजर टाइप का होता, उसका रिटर्न टाइप, तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, अगर सर हाई फंक्शन इंटीजर टाइप का बनाते, यहाँ पे ये करना पड़ता है, यहाँ पे इंट लिखो इसको। नहीं सर, टाइप कास्ट वाले में भी तो void रह सकता है यहाँ पे, रिटर्न टाइप के लिए सिर्फ। तो सर फंक्शन के पॉइंटर टू फंक्शन वाले को तो वॉइड ही रहने दें, हाई फंक्शन को खाली इंट कर दें, तो लाइन नंबर सी में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी ना। बेटा ऐसा है ना, आपने जो है देखो, गुड प्रैक्टिस तो आपकी ये है कि आप जब डिक्लेरेशन देते हो पॉइंटर टू ए फंक्शन का, तो उसकी मैच होनी चाहिए जिस फंक्शन पे आप उसको पॉइंट करना चाह रहे हो। तो आप हाई फंक्शन को, आप प्रोग्रामिंग में आप जब करना स्टार्ट करते हो तो आपका एक माइंडसेट तो होता है कि मुझे हाई फंक्शन में पॉइंट कराना है इसको। तो जिस टाइप की आपकी उसकी फंक्शन टाइप है, उसी टाइप का आपको उसको यहाँ पे पॉइंटर टू ए फंक्शन बनाओ। ओके, नहीं सर, पर जैसे जेनेरिक पॉइंटर में void रिटर्न टाइप रखते हैं ना, जेनरिक और फिर पॉइंटर उसे के टाइप अंदर कास्ट कर देते बाद में। हाँ, जेनरिक अगर इसको पॉइंटर बनाते तो फिर आप इसको वॉइड स्टार लिखते हैं यहाँ पे इंट की जगह। अच्छा, अंदर भी होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए मतलब void। हाँ, तभी तो वो जेनरिक पॉइंटर माना जाएगा ना। वैसे नॉर्मली भी Okay, कर sir. सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो है आर्ग्यूमेंटेशन मीनिंग उसकी सिंटेक्स जो है इस तरह का है कि हमें जो है अंदर भी आर्ग्यूमेंट वॉइड स्टार के बनाने पड़ेंगे, फिर हम टाइप कास्ट कर लेंगे उसको। Okay, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो एक चीज और देख लो, अब मुझे जल्दी जल्दी इनकी रीडिंग करना सिखा दो जल्दी। ये क्या है, ये नंबर 1 को कैसे रीड करेंगे, चलो बताओ। अरे इसका आंसर नहीं देखना है भाई, बताओ पहले इसको। अब आंसर तो दिख ही रहा होगा आपको, खैर दिख रहा है। आंसर नहीं देखना, अपने आप से ट्रू रहना है और फिर बताना है मुझे ये चीज। कैसे रीड करूं इसको, So it is a pointer to a pointer. Which points to a character. Yes, sir. Character. आंसर देख के बात कर रहे हो कि अपने आप से बता रहे हो? No, sir. सर अपने आप से ये तो नॉर्मल है, से पता है। हाँ सर, ये पॉइंटर टू पॉइंटर वाला है कॉन्सेप्ट। यस। हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? Am I audible? यस गरिमा। सर वो माइक नहीं काम कर रहा था, पता नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। अब बताओ गरिमा, चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यस सर। सर ये वैसे 2 स्टार कैसे, मतलब सर ये समझ नहीं आया। नहीं, कितने भी लगा दें, तो जो है पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर कुछ भी डिक्लेरेशन दे देंगे। इसी को तो कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, जो हम यूजुअली नहीं करते प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पे बताने का मतलब क्या है सर मतलब
हाँ, बताने का मीनिंग 3 क्या है, या आपको 4 रीडिंग कितने करनी भी आनी लगा चाहिए। अब सकते इसका हाँ, इसको रीड करके दिखाओ, कैर स्टार स्टार ARGV, जो रूल बताया अभी। Sir, it is a pointer to a pointer which is pointing to a character value. बस इतनी सी बात थी। सर आपने कहा कि सर स्टार स्टार है, 2 ही ऑपरेटर दिख रहे हैं और ये स्टार पहला जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर मुझे खाली ये दिया होता तो मुझे पता चलता कि सर ARGV इज अ पॉइंटर। ठीक है, ARGV इज अ पॉइंटर। ओके सर, दिस इज ARGV इज अ पॉइंटर। लेट पॉइंटर कैसे बनाते हैं, ये पॉइंट कर रहा है किसी को। सर किसको पॉइंट कर रहा है, इट इज अगेन पॉइंटिंग टू अ पॉइंटर। ये किसी एक अलग के दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंटर है। और वो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, फिर एक कैरेक्टर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई? सेकंड पे आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर। सेकंड, हाँ बोलो। सर इसमें ये जरूरी थोड़ी है जो अंदर वाला स्टार ARG है वो भी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा। नहीं, हमने कहाँ बोला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है? हमने तो ये कहा है कि पॉइंटर को पॉइंट, एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। हमने कैरेक्टर लास्ट वाला कर रहा है ना, ये कैरेक्टर को, ये वाला कर रहा है इसको। कौन सा यहाँ वाला पे सर? जिस, मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस 100 है, फॉर एग्जांपल 100 एड्रेस है ये, इसका एड्रेस मान लो 200, तो यहाँ पे 200 आ गया। इसका खुद का एड्रेस 300 मान लो, तो यहाँ पे 100 पे जो वैल्यू है ना, वो एक कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही है अब? अच्छा, यस सर। सेकंड में रीड करके और दिखाओ बता चलो। दीजिए। ये वाली बेटा देखो, सुनो दोबारा देखो इसको, एक सेकंड इसको रब करो पहले। देखो ARGV पॉइंटर, इतना बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जब भी मैं किसी को पॉइंटर बोलता हूं तो ये एरो बना दोगे ऐसे, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मीनिंग किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ये। यस तो सर। किसी एड्रेस को, फॉर एग्जांपल एड्रेस मान लिया हमने 100, ओके, यस यहाँ पे 100 आ गया। ये एड्रेस किसी एड्रेस को पॉइंट कर रही है, Yes, मीनिंग sir. देखो इट इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। अब सेकंड नंबर पे भी क्या है, पॉइंटर है मेरा, मीनिंग ये जो बॉक्स बना है ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है। चलो ठीक है, पॉइंटर है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, किसी को पॉइंट कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल 200 एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है ये, तो हाँ 200 डाल दो। तो और ये जो लास्ट वाला पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक कैरेक्टर वैल्यू को। तो किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 200 पे क्या है, कोई कैरेक्टर वैल्यू। बात समझ में आ गई? ये पॉइंटर नहीं है, ये वाला पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर से दो। यस सर। यस सर। सर ये पॉइंटर टू पॉइंटर वाले टाइप को बनाने का ये फायदा होता है ना कि इससे फर्स्ट वाली वैल्यू को भी वो पॉइंट मतलब निकाल सकते हैं डायरेक्टली चाहे तो। हाँ बिल्कुल, पहले वाले जहां पे ए कहाँ पे स्टोर, हम पॉइंटर टू पॉइंटर से ले सकते हैं। देखो यार, मैं कितने भी पॉइंटर टू पॉइंटर 1000 टाइम्स पॉइंटर बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन बात ये है ना, करना क्यों है इतना कॉम्प्लेक्स? पॉइंटर को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो उसको आपकी रीडेबिलिटी फिनिश हो जाएगी कोड के अंदर से। तो अगर आपको Yes. कहीं से रास्ता मिल रहा है ए की वैल्यू को फैच करने का, तो आप वो रास्ता बना लो, रेदर देन पॉइंटर टू पॉइंटर करते रहो इस तरह से, अगर कोई और तरीका दिख रहा है तो आपको। ओके, यस सर। सेकंड नंबर को रीड करो चलो। एक सेकंड में इसको यहाँ से लिखता हूँ यार, तुम लोग देख लेते हो उधर फिर ना। क्या है ये, देखो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है आज ना। ये क्या था, इंट स्टार, क्या था, पी था ना, देखना पड़ेगा क्या था एग्जांपल। इंट स्टार, अच्छा ऐसे था ना, ब्रैकेट में पी। ये तो हमने एग्जांपल दे ही दिया यार, ये तो बताओ। पाइप ले लो। नहीं, स्टार है अंदर है कि बाहर है, एक सेकंड रुको, अंदर है ना, ठीक है, गलत लगा दिया है। चलो रीड करो जल्दी से। Sir, P is an pointer to an Sir, array P of is a pointer. 5. Pointer to an array of size Sir, P 5. is a pointer which point array of size 5 which hold integers. Pointer to an array of size 5 integers.
रिप्रेजेंट कर लोगे? करके दिखाऊं? कर लेंगे सर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया देखो कैसे। सर प्रेसिडेंस ऑर्डर निकालो जल्दी से। सर दोनों की प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम लग रही है। यहाँ पे पी का क्या है? हमारा पॉइंटर है। पी इज अ पॉइंटर। चलो पॉइंटर बना लो। किस पे पॉइंटर है? सर ये मुझे ब्रैकेट दिख रहा है कोई। ये ब्रैकेट तो सर एरे के लिए होता है। 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। किस टाइप के है ये? सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं। बात समझ में आ गई? सो पी इज अ पॉइंटर टू है ना array. P is a pointer to an array which contains integer values. Okay. चलो Yes, नेक्स्ट sir. एग्जांपल पे आ जाओ। तो अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल कराने का रीजन ये है कि आपको कोई भी इस तरह का दिया हो तो आप उसको निकाल पाओ। ठीक है, अदरवाइज इतनी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन आपको करनी नहीं है, कोडिंग में कभी नहीं करनी है। ठीक है, देख लो इस तरह से किया था ये। देखो चले नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 3। Yes, sir. Yes, sir. सेम ही है लगभग। यस, थोड़ा सा ब्रैकेट हटा दिया है। अब क्या बन गया? पॉइंटर। पीटीआर इज Array, sir. Sir, it Of is an array containing 10 pointers. ठीक है। So let us suppose this is 10, up to this is 10. So this is pointers. They are pointing to what? Pointing to integer. Some integer values. Okay. Now coming to this example, 4th number. Void star comp is some function and this one. Pointer to a So function. what is the- okay, so which is having the highest priority now? Bracket, The sir. bracket. Okay. Read Yes, it. sir. Read out. Sir, it is a pointer to a function. Comp is a pointer to a function. Sir, what? No, Garima, no. Sir. Read No, out. sir. What is first, beta? comp is a function. Function. So, Function. okay. comp is a function, right? Yes, sir. Then it is finished. Then come to the line number 2. Sir, comp is a function, and before function we have written something. And before function, what we write? Before function, what we write? Its return type, yes or no? Yes, sir. So that returns So a pointer value. what it ठीक है, is sir. returning? What it is returning, beta? Sir, a pointer value. Pointer. So it means, sir, whatever the function we have made, it is returning some addresses. That is a pointer. Sir, comp is a function which is returning an address. So how we will read it out? Sir, comp is a function that is returning a pointer. That सर is रिटर्न address. टाइप तो void है सर, हम रिटर्निंग कैसे कह सकते हैं? ये void type का pointer तो सर कुछ भी नहीं होगा मतलब। मतलब रिटर्न तो करेगा ही ठीक है। नहीं। हाँ तो रिटर्न नहीं करेगा, वही तो बोल रहा हूँ। इसको रीड आउट करो ना फिर। अभी तक तो मैंने लाइन नंबर 1 और 2 का बताया केवल। सर अगर लाइन नंबर 1 और 2 होती तो सर हम ऐसे बोलते। The comp is a pointer that will hold addresses value and will not return anything. think about। दोबारा अच्छे से Sir, सोचो क्या है। comp is a function that returns pointer of void type. void star मतलब yes sir. comp is a sir comp is a function which is returning a void star। ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, pointer of void type. Read out।
COMP is a function that is returning a pointer to a void. Pointer to a void. Void pointer. That is a generic pointer. CMP जो हमारा है फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है सर? वो रिटर्न तो कुछ इंटीजर जो उसको एड्रेसेस स्पेसिस रिटर्न करने थे, एड्रेसेस रिटर्न करने थे, बट दैट इज अ वॉइड स्टार टाइप. It is not returning any addresses. Pointer to a void. It is returning some addresses which does not have anything. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. It is returning some addresses which does not point anything. Right? Void. That is void star. इसको रीड का, इसको फिफ्थ को रीड करो. So COMP is a pointer to a function that return The correct. pointer to a function of return type character. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? इसमें रीडिंग में कोई गलती तो नहीं होगी अब? No, No, sir. मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लोगे इसकी? कैसे बनेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. एक कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन और देखो, 6 नंबर. इसको साफ साफ लिख देते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, वो समझाने के लिए किया हुआ है मैंने. कैर स्टार देन स्टार एंड देन FP. Okay, you can send this snapshot also. Send it. आप सही लग रहा है? अब रीड करो इसको, चलो. You upload on Google Classroom only. रीड करो. Google Classroom. आज की डेट में हो जाएगा रीड ये? करीमा, हो जाएगा सर. 2 सेकंड सर, 2 सेकंड. सर बस एक सुनील, अमर, अक्षदीप, राघव, ब्रिजमोहन, भावेश, हर्ष, अभिनव. Yes. ओके. सो वी विल डिस्कस इट टुमारो. सो अभी जो है आप जो भी नेक्स्ट क्लास है उसको जो है आप ज्वाइन कर लो. इसका सॉल्यूशन जो आप अपना बना के रखना, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे इसमें. ओके, नाउ यू कैन Okay. लीव. Thank you, sir. excuse me, sir. Sir, could you Excuse me, sir. ओके बेटा, नाउ यू कैन Excuse me, लीव. sir. हाँ बोलो बोलो Excuse me, sir. बोलो. सर बोलो भाई. हाँ सर, मुझे ये बोलना था बोलो क्या? कि स्टूडेंट्स की तरफ से सर, एक्सक्यूज मी सर, मैम, अरे बोलोगे मुझे तभी ये तो. बोलना बोलो, था बोलो. कि स्टूडेंट्स की तरफ से हाँ सर स्टूडेंट्स की तरफ से हमने आपको एक मेल लिखा है जो हम प्रॉब्लम तरुण सर के साथ पेश कर रहे थे, तो सर प्लीज आप देख लीजिएगा, प्लीज उस पर एक्शन लीजिएगा जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए. क्या बोल रहे हो यार? समझ नहीं आ रहा. सर वो कह रहा है कि सर जो ग्रीवेंसेस कमेटी am है I- सर, उसमें जो ग्रीवेंसेस कमेटी है उसके जो मेल लिखा हुआ है, आप उसमें स्टूडेंट काउंसलर हैं सर. ओके.